ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। दिस इज़ एमन खुरम और आज हम कर रहे हैं D1 जो कि है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन। और आज हम एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। स्क्रीन पे यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ डिटर्मिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू मस्ट नो what are the prime numbers and what are the composite numbers. We cannot solve this question until we don't have the concept of these prime and composite numbers. So let's understand prime and composite numbers first. If you already have the idea of these numbers then you can fast forward my video. लेकिन अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो या you have a little bit idea of these numbers, prime and composite numbers, so you can watch my video carefully, then you will get the complete idea, right? So first of all we will understand what are the prime numbers. Prime numbers are unique numbers actually. Let me write prime numbers. ओके, प्राइम नंबर्स जो होते हैं यूनिक नंबर्स होते हैं, दे आर ग्रेटर देन 1 और इनकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है कि ये इनके हमेशा 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं. सो द मेन थिंग इज़ प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स. लेट मी गिव यू द एग्ज़ाम्पल. जैसे हमारे पास नंबर है 2, 3, 5, 7, 11 and so on. All these numbers are the example of prime numbers. किसी भी इनमें से किसी नंबर की एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हम नंबर 7 की एग्जांपल लें तो नंबर 7 के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होता है जो उस गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे और उसका कोई रिमाइंडर ना रहे. जैसे 7 को अगर देखें तो 7 1 पे कम्प्लीटली डिविजिबल है और कोई भी रिमाइंडर नहीं रहता. 1 7 ज़ा 7. और दूसरा नंबर वो इटसेल्फ है 7, 7 1 ज़ा 7. तो नंबर 7 के सिर्फ 2 फैक्टर हुए, 1 और 7. हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से नंबर 13. नंबर 13 भी सिर्फ 2 टेबल पे या 2 नंबर्स पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है. द फर्स्ट वन इज़ नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 जो है वो हर नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है. और दूसरा 13 सिर्फ 13 के ऊपर डिवाइड होगा. तो इसका मतलब है नंबर 13 के भी सिर्फ 2 फैक्टर हुए, एक 1 और एक 13. ऐसे सब नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. दे आर कॉल्ड prime numbers. Now we will learn about the second kind of numbers which are composite numbers. Okay जी, so composite numbers are those numbers which have more than 2 factors. ये भी 1 से बड़े होते हैं. जैसे इनमें एग्जांपल है हमारे पास नंबर 4 की, क्योंकि नंबर 2 और नंबर 3 जो हैं दे आर प्राइम नंबर्स. नंबर 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और नंबर 3 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर. ये दोनों जो नंबर्स हैं दे आर द प्राइम नंबर्स. नाउ वी विल लर्न अबाउट द composite numbers. Number 4, number 6, number 8, 9 even, 10 and so on. So these numbers which come in more than which are divisible by more than 2 numbers are called the composite numbers. Let's take an example of number 8. Number 8 is completely divisible by number 1. Number 8 is completely divisible by number 2. Number 8 is completely divisible by number 4. And number 8 is completely divisible by number 8 itself, right? So number 8 has how many factors? Yes, number 8 has 4 factors. 1, 2, 4 and 8. Similarly, all these numbers, number 4, 6, 8, 9 and 10 and 12 and 14, 15, all these numbers are the example of composite numbers because these numbers have more than 2 factors. So we can define composite number as these numbers have more than 2 factors.
right? Hopefully it is clear to all of you now what are the prime numbers, what are the composite numbers. Now we will see how to do the question number 1. And let me tell you one more thing here before doing this question. What about number 0 and 1? Number 0 has no factor and number 1 has only one factor. Let me explain how. Because number 1 is only come divisible by number 1. So there is no other factor. So actually this number 1 does not fulfill the criteria of prime number. And similarly number 0 has no factor. So all these two numbers 0 and 1, 0 and 1, they are neither prime nor composite numbers. So they are neither prime nor composite numbers. The reason is they both don't have even two factors, not more than two factors. So that's why we will say 0 and 1 are neither prime nor composite, right? Let's start question number 1 now, and I will explain how we will solve this question. In your book, the method they use for solving the question number 1 is trial division method. Now let me explain what is the trial division method. Trial division method हम use करते हैं to determine either the given number is prime or composite. So in this question number 1, they have given you number 87 in A part. We have to determine either it is a prime number or a composite number. For this we will use the trial division method. Trial division method में given number का हमने square root लेना होता है. So let's take the square root of number 87. अगर हम इसका square root लेते हैं तो answer will be around 9 by using the calculator. But अगर आप calculator नहीं use करते तो we will estimate the inside number should be the square of some number. We all know 87 is not the square of any number. So can we say that the closest number to of 87 will be the 81? Because 81 we all know that is a 9 square. 9 square is equal to 81. In trial division method we have to take the square root of the given number, लेकिन अंदर वाला number should be the square of some number. तो 87 was not the square of any number. तो हम इसके पास वाला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो हम ले लेंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आंसर किसके पास आएगा. तो उसके लिए मैंने 81 ले लिया, 81 का स्क्वायर रूट ले लिया, राइट. अब आई नो कि 81 9 का स्क्वायर है, एंड जब मैं इसका स्क्वायर लूँगी तो मैं आंसर विल बी, स्क्वायर रूट लूँगी तो इसका आंसर विल बी 9. अब ये 9 एक ऐसा नंबर है जिससे छोटे आपने प्राइम नंबर से गिवन नंबर को डिवाइड करके देखना है. ये एक ऐसा बेंचमार्क, ये एक ऐसी चीज़ है, ये नंबर एक ऐसा नंबर है जिससे छोटे आप तमाम प्राइम नंबर्स के साथ गिवन नंबर को डिवाइड करके देखेंगे. अगर नंबर डिवाइड हो गया इट विल बी अ कंपोजिट नंबर, लेकिन अगर नंबर डिवाइड ना हुआ तो इट विल बी अ प्राइम नंबर. और हम सबको पता है कि 9 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं. सो वी विल डिवाइड 87 गिवन नंबर है विद नंबर 2 3 5 एंड 7. ये वो नंबर हैं जो इस नंबर 9 से छोटे हैं. इनसे हम गिवन नंबर को यानी 87 को डिवाइड करके देखेंगे. अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो इट विल बी अ कंपोजिट नंबर, इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया. और अगर ना डिवाइड हुआ तो इट विल बी अ प्राइम नंबर. चलें चेक करते हैं. सबसे पहले एज वी नो 87 इज़ एन ऑड नंबर, सो विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2. लेट्स कम टू द 3 नंबर.
3 के लिए वी हैव आर डिविजिबिलिटी रूल टू चेक ईदर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट. सो वी विल द डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 3 का, वो ये होता है कि जो भी गिवन नंबर होता है आप उसके डिजिट्स को ऐड करके देख लेते हैं. ये सिर्फ 3 के लिए टेस्ट है. ये शॉर्टकट सिर्फ 3 नंबर की डिवीजन चेक करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. नॉट फॉर नंबर 5, नॉट फॉर नंबर 7, नॉट फॉर नंबर 2 एंड नॉट फॉर एनी अदर नंबर. दिस इज़ कॉल्ड डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 3. सो देखने के लिए कि ये नंबर 3 पे डिवाइड होगा कि नहीं, वी विल ऐड इट्स डिजिट. सो 8 + 7 = 15. चूँकि ये 15 3 के टेबल में आता है, 3 पे डिविजिबल है, सो दैट्स वाई 87 भी 3 पे डिविजिबल होगा. ये एक शॉर्टकट है टू फाइंड आउट विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन कि हम कोई भी जो गिवन नंबर है वो 3 पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता. सो दिस मीन्स ये नंबर 3 पे डिवाइड हो सकता है. वो हमें कैसे पता लगा? बाय एडिंग द डिजिट्स. आवर सम इज़ 15. तो 15 इज़ डिविजिबल बाय 3. दिस मीन्स 87 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. अगर डिवाइड हो गया तो दिस मीन्स 87 इज़ अ कंपोजिट नंबर. सो हम लिखेंगे 87 इज़ नॉट divisible by 2 but it is divisible by 3. So अब जब 3 पे डिवाइड हो गया तो हमें उसको 5 और 7 से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर 3 पे डिवाइड हो गया तो इट प्रूव्स इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. सो 87 is a composite number, and that is something that we actually need to know, either it is a prime number or a composite number. So we have find out 87 is a composite number. Now let's come to the B part, which is 67. अब द सेम ट्रायल डिवीजन मेथड हम यूज़ करेंगे टू चेक ईदर दिस नंबर 67 इज़ अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर. सो लेट्स स्टार्ट द होल प्रोसेस वंस अगेन. हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 67 का, और हमें पता है 67 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है. कैसे? क्योंकि अगर हम 7 का स्क्वायर लें आंसर विल बी 49, और अगर हम 8 का स्क्वायर लें आंसर विल बी 64 विच इज़ वेरी नियर टू इट. और अगर मैं 9 का स्क्वायर लूँ तो इट विल बी 81, जो कि इससे काफ़ी बड़ा है. तो दिस नंबर इज़ क्लोजेस्ट. तो हम इस नंबर को पिक कर लेंगे. तो मैं कह सकती हूँ कि 64 एक्चुअली कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर है इसके पास. सो हमें पता है 64 इज़ 8 टाइम्स स्क्वायर. सो द आंसर विल बी 8. अब ये नंबर है जिससे छोटे प्राइम नंबर्स के साथ हम 67 को डिवाइड करेंगे. इससे छोटे या नंबर 8 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके साथ हमें 67 को डिवाइड करके देखना है. सो वी विल डिवाइड 67 बाय 2, 3, 5 एंड 7, क्योंकि यही 4 नंबर 8 से छोटे हैं. अगेन 67 एक ऑड नंबर है, सो विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2. 3 के लिए चेक कर लेते हैं. 6 + 7 13. 13 3 के टेबल पे नहीं आता, 3 पे डिवाइड नहीं होता. सो इसका मतलब है 67 भी 3 पे डिवाइड नहीं होगा. ये रूल सिर्फ नंबर 3 के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. अब 67 का लास्ट डिजिट जो है वो ना तो 0 है और ना ही ये 5 है. सो इसका मतलब है 67 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 5. अब रह गया नंबर 7. तो 7 9s are 63 and 7 10s are 70. So there is no 67. 67 is also not divisible by number 7. तो इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ. अगर गिवन नंबर इस नंबर के छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड ना हो मीन्स ये एक प्राइम नंबर है. सो इट प्रूव्स. हम लिखेंगे 67 is not
divisible by 2, 3, 5 and 7, so it is a prime number. So the required thing is either it is a prime number or not, and yes, 67 is a prime number. Let's come to the part C, and this part is 73. ओके 73 को भी हम अगेन ट्रायल डिवीजन मेथड से देखेंगे. वी विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर 73, और अगेन 73 इज़ नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. तो हम देखेंगे कि ये किस नंबर के पास है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो. अगर हम 7 की बात करें इट विल बी 49, और अगर हम 8 की बात करें इट विल बी 64 विच इज़ क्लोजर टू 73. या और अगर 9 की बात करें इट विल बी 81 विच इज़ बिगर देन 73. सो इट्स अप टू यू, यू वांट टू टेक दिस नंबर और यू वांट टू टेक दिस नंबर. आई विल गो विद द 8. So I can say that this number is near to 64 which is 8 square, and answer will be 8. So 8 is the number. और 8 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, सिर्फ प्राइम नंबर्स, हम उसके साथ 73 को डिवाइड करके देखेंगे. अगर डिवाइड हो गया तो कंपोजिट नंबर, और अगर डिवाइड ना हुआ तो इट विल बी अ प्राइम नंबर. लेट्स सी. सो वी विल डिवाइड 73 by 2, 3, 5 and 7. Right? Again 73 is an odd number, so will not be divisible by 2. Number 2 तो गया. Let's check for the number 3. और number 3 के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास divisibility rule for 3 क्या है. हम digits को add करके देख लेते हैं. So 7 plus 3 is equal to 10. 10 number is not divisible by 3. तो 73 भी जो है वो 3 पे डिविजिबल नहीं होगा. तो नंबर 3 भी गया, और 73 का लास्ट डिजिट ना 0 है ना 5 है, तो ये 5 पे भी डिवाइड नहीं होगा. अब रह गया सिर्फ नंबर 7. तो 7 के लिए भी देख लेते हैं. 7 10s 70 and 7 11s 77. सो देर इज़ नो 73. इसका मतलब है 73 ना 2 पे डिविजिबल है, ना 3 पे, ना 5 पे, और ना ही 7 पे. तो ये प्रूव हो गया कि इट इज़ अ प्राइम नंबर. तो हम लिखेंगे 73 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, 3, 5 and 7. So it is a प्राइम नंबर. और यही हमें पता करना था कि ये एक कंपोजिट नंबर है या एक प्राइम नंबर. तो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट ईदर एनी गिवन नंबर इज़ अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर. बट इन दिस केस 73 इज़ अ प्राइम नंबर. लेट्स गो फॉर द डी पार्ट, एंड डी पार्ट इज़ 91. अगेन हम यूज़ करेंगे ट्रायल डिवीजन मेथड. सो वी विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 91. 91 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके पास 100 है जो 10 का स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट स्क्वायर को ख़त्म करेगा और आंसर विल बी 10. तो 10 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं जो कि 2, 3, 5, 7 हैं, हम उनसे नंबर 91 को चेक करेंगे डिवाइड करके कि ये डिवाइड होता है कि नहीं. So we will divide 91 by 2, 3, 5 and 7. Right? 91 again is a odd number, so will not be divisible by 2. एंड डिविजिबिलिटी रूल उसके लिए देखते हैं. 9 + 1 10,
तो 10 इज़ नॉट देयर इन 3 टेबल, सो 91 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। और 91 का लास्ट डिजिट जो है वो ना 0 है ना 5 है, सो 91 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। अब रह गया सिर्फ नंबर 7, तो नंबर 7 पे चेक करते हैं। नंबर 7 पे 7 1s are 7, 2 7 3s are 21, so yes, this number is completely divisible by number 7। कोई रिमाइंडर नहीं रहा, कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। और एक भी नंबर पे अगर डिवाइड हो गया तो इसका मतलब इट विल बी अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ 1 पे डिवाइड होते हैं और सिर्फ अपने नंबर पे, लेकिन 91 7 पे भी डिवाइड हो गया है। तो हम लिखेंगे 91 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 3 and 5 but divisible by 7, so it is a composite number। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, चेक करना कि ये नंबर प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर। सो बाय यूजिंग द ट्रायल डिवीजन मेथड वी कम टू नो दैट 91 इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डन। होपफुली आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। वेल, यू कैन गिव मी योर सजेशंस इन कमेंट एज वेल, so that I can improve my videos, or I can change the way I'm teaching this question, because there is always a room for improvement. Do tell me, do give me your suggestion in comment. Thank you so very much. This is question number 1.